Good morning, dear students. I welcome you all here in my class once again. Today, we are going to start with the grammar portion. So, I, Pratiksha Tiwari, invite you all with your all attentiveness and alertness in the class right now to pay attention this very important part of the grammar. My dear students, writing letter is so very important. The art of writing letter is very important. You must watch this video very carefully and you make practice of writing letters such that in future you don't need to see any book or any reference to write a letter. You should be very very alertive in terms of writing a letter. आपकी ये हैबिट में आ जाना चाहिए बेटा. आपको इतने अच्छे तरीके से वीडियो देखना है और फिर राइटिंग लिखने की, एप्लीकेशन लिखने की प्रैक्टिस करनी, लेटर लिखने की प्रैक्टिस करनी. डियर स्टूडेंट, इन द अर्लियर वीडियो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेटर्स आर ऑफ टू टाइप. वन इज फॉर्मल एंड वन इज इनफॉर्मल. सो फॉर्मल लेटर का मतलब होता है बेटा औपचारिक पत्र. दैट मीन्स आप इसको लिखते हो किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को. क्लियर? अपने हेड को, अपने सबऑर्डिनेट को, लाइक दैट. सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल लेटर, जहाँ पे आप औपचारिक बात करते हो, जहाँ पे आप ज़्यादा खुल नहीं सकते, ज़्यादा अपने इमोशंस नहीं रख सकते. दैट मीन्स आपको ऑफिशियल बात करनी होती है. यू हैव टू राइट टू द पॉइंट इन योर लेटर द कंटेंट and also you cannot be very friendly with the one you are writing to letter. You have to be in your area, in your boundaries to write that particular letter. So this is called the formal letter writing. Now what are the types of formal letter? Formal letter के बहुत सारे types होते हैं. मेरे students, ये letter आप लिखते हैं अपने principal को. Sometimes you write the letter to complain someone. Sometimes you write the letter to inquiry about something. Sometimes you write the letter to the editor of particular news channel, or the like India TV or The Hindu or something like that, to the editor of that news channel. Sometimes you write the letter for placing some order, so like that. There are variety of the letter. Today we are going to learn to write a letter to the editor of a newspaper. Okay, now what are the precious point or the important point when you are going to write a letter you should keep in your mind? My dear student, the very first point is you need to be polite. दैट मीन्स विनम्र होना है आपको जब आप अपने लेटर को लिख रहे हैं. सेकेंडली, यू नीड टू यूज द सिंपल लैंग्वेज. आपको प्यारी और सीधी भाषा यूज करनी सो दैट जो ये लेटर पढ़े उसको समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी प्रिसाइज. आपके लेटर की बॉडी बेटा 100 and 120 वर्ड्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. योर लेटर शुड बी वेरी प्रिसाइज. नेक्स्ट, डू नॉट एग्जेजरेट. ज़बरदस्ती आप वहाँ पे लेटर को लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे. The next very important point is be positive in your approach. आपका लेटर में जो आपके लिखने का तरीका है, आपकी भावनाएं हैं, the content should be positive in manner of writing. The next one is there should be a sequence of writing, a sequence of fact you are writing the letter about, and you should use the proper format. The format of writing the formal letter is very very important. So keep that in your mind. And last but not least, use the proper सैल्यूसेशन एंड दी क्लोजिंग. ठीक है, आपको एक प्रॉपर सैल्यूसेशन बेटा यूज करना होता है और एक प्रॉपर क्लोजिंग के साथ अपने लेटर को एंड करना होता है. दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर. नाउ लेट्स बिगिन हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर. सो आई हैव टेकन अ सब्जेक्ट हियर. वी आर गोइंग टू लर्न टू राइट अ फॉर्मल लेटर टू दी एडिटर. किसी एडिटर को आप अगर कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे? लेट्स सी दैट. Here we have taken a subject, write a letter to the editor of a local dairy highlighting the problem of the garbage throwing on the road and its repercussions. Your letter should not exceed 100 to 120 words. You are Saurabh L. Surbi, 25B, Vikaspuri, New Delhi. My dear students, आपको यहाँ पे पत्र लिखना है एक अखबार के एडिटर को जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. और आप जो लेटर लिख रहे हैं आपका नाम यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है सौरभ इफ यूर अ बॉय एंड सुरभि इफ यूर अ गर्ल. द एड्रेस ऑफ यू इज ऑल्सो गिवन देयर, दैट इज 25B, विकासपुरी, न्यू दिल्ली. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट आर द लेआउट और द बॉडीज और द की पॉइंट्स व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द फॉर्मल लेटर टू द एडिटर? लेट्स सी. द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स इज योर एड्रेस. योर एड्रेस शुड बी देयर. ओके माय डियर स्टूडेंट, your address, that means you will write your address according to question 25B, Vikaspuri, New Delhi. Now you will write the date on which you are writing the particular letter. So the date is
21st June 2021. Now the third point comes कि आप ये लेटर किसको लिख रहे हैं. So here we are writing the letter. So we will give the salutation. That means आपको संबोधन देना है. आप किसी न्यूज़पेपर के राइटर यानी कि एडिटर को लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? salutation to the editor. Okay. अब वो कहाँ के एडिटर है? So he is the editor of the Times of India. That is in New Delhi. अब आपको ये लेटर उस एडिटर को क्यों लिखना पड़ा? इसका भी रीजन जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था. रीजन ये था कि उस प्रेस से, उस अखबार से जो भी कचरा निकलता है वो रोड पे फेंक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को और आपको तकलीफ हो रही है और साथ ही साथ इट इज़ अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट टू. आप उनको लेटर लिख रहे हैं ये बताते हुए कि इस चीज़ को वो ध्यान में रखें, सो दैट उस गार्बेज का, वेस्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा तरीका वो निकाले जिससे हमको, हमारे आसपास के लोगों को एंड द एनवायरनमेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड. ओके, सो दैट इज द रीजन यू आर राइटिंग. So the next body of our letter will be the subject. So you have mentioned the subject is problem of garbage on road. So that was our fourth point, that is subject. Now the fifth point is denotion. Now you will start writing your letter mentioning sir. Okay, that is your denotion. आप उनकी पोस्ट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप वहाँ पे सर या मैडम मेंशन करेंगे. नाउ आपका मैटर स्टार्ट हो जाएगा. तो मैटर आप कैसे स्टार्ट करते हैं बेटा? यू स्टार्ट योर मैटर बीइंग वेरी पोलाइट, being very respectful to the authority, to the dedication of the person. You start writing saying, I would like to draw your attention of general people through. अब जो भी आपका मैटर है आप वो कंटिन्यू करेंगे. आप शुरुआत कैसे करेंगे? मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ. I would like to draw your attention on ब्ला ब्ला ब्ला. जो भी आपका मैटर है बेटा आप वो स्टार्ट करेंगे. पूरा मैटर लिखने के बाद आपको एंडिंग कैसे करनी है? योर एंडिंग शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल विद इन द बाउंड्रीज, टू द पॉइंट एंड सेंसिबल एंड अप्रोचिंग. ओके, सो मेंशनिंग दैट, कीपिंग दैट इन माइंड, योर एंडिंग शुड बी लाइक वी शुड बी सेंसिबल एंड कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट. हमें सेंसिबल होना चाहिए और हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट में भी अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे. ऐसा कहते हुए आप अपने इस लेटर को क्या करेंगे बेटा? एंड करेंगे. नाउ द नेक्स्ट बॉडी ऑफ योर लेटर कम्स, यू विल आल्सो से thank you to the authority, to the designator you are writing the letter to. Next you will mention yours sincerely Surbhi. आप अपना नाम लिखिए. So this is the way you write a letter to the editor. Let me remind once again. सबसे पहले आपका एड्रेस बेटा, then जिस डेट पे आप वो लेटर लिख रहे हैं the date should come. Then जिनको आप ये लेटर लिख रहे हैं, the editor, the Times of India, New Delhi, ये चीज़ें आएंगी. फिर next you will mention the subject, the reason of writing the letter, problem of garbage on the road. Then you will give respect, giving the salutation, the sambodhan to the editor. Next your matter will come here. You will say thank you, yours sincerely Surbhi. So this is the way you write a letter to the editor. So keep practice it. Write this. I will send you the PDF. Pay attention to this particular layout of writing a formal letter. माय डियर स्टूडेंट, लेटर लिखना एक बहुत अच्छी कला है. अगर आप ये अभी सीख जाएंगे तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगा. इफ़ यू गो टू एनी बैंक, इफ़ यू गो टू एनी पोस्ट ऑफिस, इफ़ यू आर फिलिंग एनी एग्जाम फॉर्म, एवरीवेयर देयर इज़ अ नीड ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर. सो प्लीज मास्टर इट राइट नाउ विथ मी एंड लर्न दिस आर्ट ऑफ राइटिंग द फॉर्मल letter. I hope you got all the important points of writing the letter. So keep it in your mind, do practice, and we'll meet in the next class. Thank you, my students.